بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 182 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کے عبارت وقد یعترض علی اجراء براءۃ سے لے کر الوظیفۃ العملیۃ فی حالت شک تک۔ کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث اصول عملیہ کے جاری ہونے کے مقام کے بارے میں چل رہی تھی کہ اصول عملیہ کہاں پہ جاری ہوتے ہیں۔ وہاں پہ عرض کیا گیا کہ جہاں پہ حکم واقعی تکلیفی میں شک ہو وہاں پہ اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بحث ہمارے پاس آئی کہ ہم دو برات کو جاری کر سکتے ہیں یا ایک برات کو، مطلب کہ اصول عملیہ کو جاری ہونا یا مخصوص ہے احکام واقعہ میں شک کے ساتھ یا احکام ظاہریہ میں شک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس بارے میں دو قول تھے۔ ایک قول تھا کہ یہاں پہ دو برات جاری ہوں گے، جس کے بارے میں بحث چل رہی تھی، وہ بیان ہو گئی، اور اس کے دو برات جاری ہونے کے بارے میں اعتراض بھی بیان ہوا، اور اس اعتراض تھا اعتراض تضاد۔ پھر اس کا شہید صدر نے جواب دیا۔ آج اس کی بقایا بحث ہے، جس میں بیان کیا جائے گا دو برات جاری ہونے کے قول کے بارے میں دوسرا اعتراض اور اس کا جواب، اور پھر دوسرا قول کہ ایک برات کو آپ جاری کر سکتے ہیں، دوسری برات کے اصل جاری کرنے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ اس کی آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى إِجْرَاءِ بَرَاءَةٍ ثَانِيَةٍ بِأَنَّهَا لَغْوٌ۔ کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے کس پہ؟ دوسرا قول دوم تھا جو کہ دو برات جاری ہم کریں گے، چونکہ دو احتمال پائے جاتے ہیں، تو پھر اس پہ پہلا اعتراض کیا ہے؟ اجتماع کے تضاد لازم آ رہا ہے، اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ دوسری برات کو جاری کرنے سے لغو ہے، یہ بے فائدہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لغو ہونے کی وضاحت یہ ہے، لغو کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم برات ثانیہ کو جاری کرتے ہیں طلاب عزیز، تو برات اولا کے بارے میں سوال ہم یہ کریں گے کہ برات اولا بھی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی جب برات ثانیہ کو آپ جاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ برات اولا کو جاری کریں گے، اچھا تو مطلب یعنی حکم واقعی سے بری و ذمہ ہونا، تو اس کا جاری ہونا کافی ہے برات ثانیہ کے جاری ہونے سے، یعنی برات ثانیہ کو جاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ برات اولا کے جاری ہونے سے ہم احتمال عقاب سے امان میں ہوں گے، یعنی ہمیں احتمال عقاب جو تھا وہ اس کی نفی ہو جائے گی ہم سے، بس احتمال عقاب پیدا ہو رہا تھا احتمال تکلیف واقعی سے، ٹھیک، ہم نے اس احتمال کو دور کر دیا برات اولا کو جاری کر کے، لہذا برات ثانیہ کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جاری کرنے لگا برات کو جاری کر کے احتمال تکلیف واقعی کی نفی کر دی تو احتمال عقاب بھی نفی ہو گیا۔ جب احتمال تکلیف واقعی کی نفی ہو گئی تو چونکہ احتمال واقعی کی نافرمان کی صورت میں احتمال عقاب تھا، جب احتمال تکلیف واقعی ہی ختم ہو گیا تو احتمال عقاب بھی ختم ہو گیا، نتیجے میں برات ثانیہ کو جاری کرنا لغو ہے۔ یہ خلاصہ اس اعتراض کا۔ اذ بدون اجراء البراءۃ عن نفس الحکم الواقعی المشکوک لا تنفع البراءۃ المؤمنۃ عن الحجۃ المشکوکۃ، چونکہ بغیر اس کے کہ آپ برات کو جاری کریں، یعنی برات جاری کیے بغیر حکم واقعی کے، خود حکم واقعی مشکوک کے بارے میں، یعنی اب نہیں کر یہ خود برات فائدہ نہیں دیتی۔ کون سی برات؟ جو ہمیں حجت مشکوکہ سے امان دیتی ہے، ہمیں بچاتی ہے۔ وہاں اجراء، اور جب برات کو آپ جاری کرتے ہیں لا حاجت لبرات ثانیہ، جب برات اولا کو آپ نے جاری کر دیا، حکم تکلیف واقعی کی نفی ہو گئی اور اس کے تبعاً احتمال عقاب کی نفی ہو گئی، تو برات ثانیہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔
इज़ ला यहतमिल इक़ाब इल्ला मिन इक़ाब इल्ला मिन नाहियत तकलीफ वाक़ई वक़द उमिन अन्हुम, चूंकि इक़ाब का एहतमाल नहीं है सिवाय तकलीफ वाक़ई की जानिब से, और उस तकलीफ वाक़ई से अमन है। यानी तकलीफ वाक़ई को जब हमने बरात किया उसकी नफ़ी हो गई, जब नफ़ी हो गई तो एहतमाल इक़ाब भी नहीं रहा, लिहाजा बरात सानी को जारी करना लगव है। ये इश्काल लगवियत लाजिम आ रहा है। वल जवाब अला ज़ालिका, शहीद सदर फरमाते इस एतराज़ दोम का जवाब यह है कि अन्न इह्तिमाल ज़ात तकलीफ वाक़ई शैउन, ये जो खुद तकलीफ वाक़ई के बारे में एहतमाल का होना एक चीज है, और वह एहतमाल तकलीफिन वाक़ईन वासिलिन इला मर्तबन मिन इहतिमाम मौलवी अल्लती तुअबरु अन्हल हुज्जियतुल मशकूकतु शैउन आखर, और तकलीफ वाक़ई का एहतमाल, कौन सी तकलीफ वाक़ई, जो पहुंचे इस मर्तबे तक के मौला उसके बारे में इतना एहतमाम करना चाहता है कि नहीं चाहता कि मुकल्लफ उससे पीछे रह जाए, और जिसके बारे में हुज्जत मशकूका हम ताबीर कर रहे हैं, ये एक और चीज है। यानी हुज्जत मशकूका के बारे में एहतमाल और खुद तकलीफ के बारे में, ये जुदागा ना दो चीजें हैं। व तामीनो अनिल अव्वले, अव्वल यानी तकलीफ ज़ात तकलीफ का एहतमाल, यहां पे इक़ाब से अमन होना लसानी, ये मतलब यह बनता कि आप दूसरे मौरिद में भी यानी तकलीफ मशकूका के बारे में भी अमान से इक़ाब से अमान में हो। अल्लाह तरा कि आप नहीं देखते कि अब अन्न बेइम्कान मौला, मौला ये कर सकता है, मुमकिन है क्या यक़ूल मुकल्लफ, मुकल्लफ को यूं कहे कुल्लमा इह्तमाल तकलीफन, जब भी आप एहतमाल दे रहे हैं कि यहाँ पे मुझ पे वजूब या हुर्मत या तकलीफ आई है, तकलीफ के होने का एहतमाल देते हैं। वह अंत तालम, और दूसरी जानब आप ये जानते हैं कि आदम क़याम हुज्जत अलैह, उस तकलीफ के बारे में कोई दलील, कोई हुज्जत शरई मौजूद नहीं है, तो फांतफ़ी से आतिमिन हो, तो वहां पे आपको एहतियात करने की कोई जरूरत नहीं है। वकुल्लमा एहतमल तकलीफन, और अगर आप तकलीफ के होने का एहतमाल दे रहे हैं, वह तमल क़याम हुज्जत अलैह, और आप कहते हैं दलील भी खबर सिका फर्क मौजूद है, तो फाहतत बिशानी, यहां पे आप को एहतियात करें, उस पहले मकाम में एहतियात नहीं है, ये दूसरे में एहतियात है। वलाकिन तहकीक माज़ालिक, ये तुल्लाब के यहां से दूसरा कौल शुरू हो रहा है कि एक बरात जारी होगी, दूसरी बरात के जारी होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यूं कि अन्ना इजरा अल बराअत अन तकलीफ वाक़ई मशकूक युगनी अन इजरा अल बराअत अन हुज्जत मशकूक, ये बरात सानिया है। अब जब बरात को आप जारी कर रहे हैं तकलीफ वाक़ई मशकूक के बारे में, कि अब जब तकलीफ वाक़ई मशकूक के बारे में बरात को जारी करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि मुझ पर तकलीफ वाक़ई नहीं है, ये जारी करना हमें बेनियाज बना देती है उस बरात को जारी करने से जो हुज्जत मशकूका के बारे में बरात आप जारी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बरात सानिया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा क्यों जरूरत नहीं पड़ती? ये वज़ालिका, ये इसका ये बेनियाज होना बेतौज़ीहिन मायली, 5 नुकात और 5 मुकद्दमात के जरिए से इसकी वजाहत होगी। अव्वलन, पहला यह है कि अन्नल बराअत अन तकलीफ वाक़ई वल हुज्जत मशकूकत, ये जो आप तकलीफ वाक़ई के बारे में बरात जारी करके तकलीफ वाक़ई की नफी कर रहे थे और हुज्जत मशकूक के बारे में, ये हुक्मान ज़ाहिरियान अर्दियान, ये दो हुक्म ज़ाहिरी हैं जो एक दूसरे के तूल में नहीं है बल्कि एक दूसरे के आर्ज में हैं। आर्ज में है एक दूसरे की तनाफी, एक दूसरे के साथ तनाफी रखते हैं। लिअन्ना मौज़ूअ हुमा माना शक फिल वाक़े, चूंकि दोनों का मौजू क्या है, वाक़े में शक हो। खिलाफन लिल बरात अन हुज्जत मशकूक, ये दूसरी बरात सानिया, बरखिलाफ बरात सानिया यानी हुज्जत मशकूक के बारे में फ़इन्ना लैस फी दरजतिहा, ये इस दर्जे में नहीं बल्कि वहां पे यानी वो एक दूसरे के अर्द में नहीं है। सानियन अन्नल हुक्मैन ज़ाहिरियैन मुख्तलिफैन, दो हुक्म ज़ाहिरी जो आपस में मुख्तलिफ, वजूब हुर्मत, वजूब ज़ाहिरी हुर्मत ज़ाहिरी मुतनाफियान है, वजूब देहमल वाक़ियान है, इनके अगर वजूद वाक़ई और हकीकी के तो क्या जाए तो आपस में तनाफी रखते हैं, सवाल मसला और ला, चाहे मुकल्लफ तक पहुंचे या न पहुंचे, कमा तकन फी माली हुक्म ज़ाहिरी की बहस में ये बयान हो चुका है। सालिसन, तीसरा होता है कि अन्नल बरात अन तकलीफ वाक़ई, अब तकलीफ वाक़ई से जब बरात कर रहे हैं, बरात जारी कर रहे हैं, तो मुनाफिर, ये बरात तनाफी रखती है, नफी करती है सबूतन, सबूत लिहाज ले हुज्जत मशकूक अला मा तक़द्दम, हुज्जत मशकूका के होने की नफी कर रही, क्योंकि ये एक दूसरे के
अर्ज में हैं, अर्ज में हैं, तो अर्ज में जब एक चीज है तो दूसरी को नफी कर रही है। राबियान, चौथा नुक्ता अन्ना मुक्तदल मुनाफात है, यानी हुक्म ज़ाहिरीन का आपस में तनाफी रखना, इसका तकादा है कि अन्ना बरात, जब आप जारी करते हैं हुक्म वाक़ी से, तस्तलज़िम, ये सबब बनती है कि आदम अल हुज्जत वाक़िअन व नफ़ीहा, कि हुज्जत ही नहीं है असल में, वाक़ और हकीकत में उसकी नफ़ी है। खामिसन अन्न दलील दाल अल बरात अन तकलीफ वाक़ी यदुल्लु बिल इल्तिज़ाम अला नफ़ील हुज्जत अल मशकूकत है, वो दलील जो बरात पे दलालत करती है कि आप मुकल्लफ जिसने शक किया है हुक्म वाक़ी के बारे में उसके बगैर तकलीफ वाक़ी नहीं है, ये इल्तिज़ामन दलालत करती है कि हुज्जत मशकूका नहीं है, क्योंकि हदीस रफ़अ उम्मती के जरिए से वहादा, यानी अब ये 5 मुकदमात हुए, नतीजा ये है कि अन्नना, इसका मतलब ये है कि अन्नना इजरा इल बरात में तकलीफ लाकी, हम जब बरात को तकलीफ वाक़ी से जारी करते हैं कि तकलीफ वाक़ी नहीं है, सनुस्बित बिदलील, तो दलील के जरिए से हम साबित करेंगे नफ़ी अल हुज्जत अल मशकूकत है कि हुज्जत मशकूका की नफ़ी है। जब तकलीफ वाक़ी से बरात कर दी कि तकलीफ वाक़ी नहीं है तो फिर हुज्जत मशकूका भी नहीं है। ऐसे फला हाजत ला असल बरात है ना, फिर हमें असल बरात की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके बारे में। इनकान ला माज़ूर है अगर असल बरात में कोई इश्काल भी नहीं है, लेकिन हमें कोई इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में वल युमकिनु, ये अलिफ लाम ये वो है इजाफी, युमकिनु है, वह युमकिनु तस्वीरो वकुल अहकाम ज़ाहिरियत मौरदन लिल उसूल अमलियत फिल हिसाब। यहां तक बरात की बहस चल रही थी। अब फरमाते कि आया ये बरात में बहस चलेगी या दीगर उसूल अमले में भी, फरमाते दीगर में भी चल सकती है, उनमें से हम इस हिसाब के बारे में इसको पेश करते हैं। मुमकिन है आप अहकाम ज़ाहिरी के वाक़े होने की तस्वीर पेश करें बतौर मिसाल, बतौर मिस्दाक मौरिद उसूल अमले के लिए, लेकिन इस हिसाब में इस कद यजरी इस हिसाब हुक्म ज़ाहिरी उन तमाम में ये अरकान साबिफी है, चूंकि कभी कभी इस हिसाब हुक्म ज़ाहिरी ये होता है, चूंकि इस हिसाब के अरकान मुकम्मल होते हैं। यकीन साबिक 1, शक के लायक 2, मशकूका मुतयक्किन कज़िया का मुत्तहिद होना और असर अमली, ये 4 अरकान इस हिसाब हैं। ये व अदम तमामियत फिल हुक्म वाक़ी, और ये अरकान हुक्म वाक़ी में ताम नहीं है, कमा इज़ा उलिमा बिल हुज्जत। अब देखिए मिसाल देते हैं। अगर फर्ज करें हुज्जत के बारे में हमें पता है कि आइम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान हुज्जत रखता है, वह शक फी नस्ख़हा, अब हमें कि ये कुरान मुकम्मल कुरान या अक्सर कुरान नस्ख़ हुआ या नहीं, शक हुआ, तो यहां पे हम इस हिसाब करेंगे फ़इन्नल मुस्तफ़ा नफ्सुल हुज्जत है, हम वो उसी हुज्जत जो पहले थी हमें जिसके बारे में यकीन था अब भी वही है। लल हुक्म वाक़ी, हुक्म वाक़ी का इस हिसाब हम नहीं कर सकते। तो लाभ किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।